Hello children, this is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy, and today I begin with your second chapter of Political Science book for class 10th. Name of the chapter is Federalism. So children, before I start with the main content of the chapter, let me remind you that in the previous chapter on power sharing, we read about various forms of power sharing, in which one of the form was vertical division of power. So when we are now studying about federalism, so it is based on the same principle. So the meaning of federalism is a system of governance or government in which power is basically divided between a central authority and its constituent units. एक पूरी country की government होती है जो पूरी country के लिए law making करती है, और बाकी जो उस country की constituent units होती हैं या regions होते हैं या states होते हैं, उन सबकी अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होती है. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म के साथ साथ एक और सिस्टम होता है जिसको यूनिटरी सिस्टम कहते हैं. सो यहाँ पे एक कंट्रास्ट दिया गया है दोनों के बीच में. सो द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज concentrated with the central authority, and even if there are sub units there or there are governments at the sub unit level, but those governments are subordinate to the central authority, and in this type of system the central authority can pass order to the state government. Whereas when we talk about federalism, so in federalism the central government cannot pass order to the state governments or the provincial governments. So this is these are the differences between federalism and unitary form of government, a federal form of government and unitary form of government. Now let's talk about the basic features of federalism. Children, I have made all the slides in the way that all the slides or the content is covering your subheadings or heading of the chapter. So when you read the book, it would be very easy for you. So features of government is that there is usually two or more level of government. या तो दो levels के बीच में power distribution होता है और या फिर तीन levels होते हैं. उसके अलावा each level of government has its own area of jurisdiction. Jurisdiction का यहाँ पे मतलब होता है कि सबके अपना एक area of authority है जिसमें वो law making कर सकते हैं. And all these powers are specified in constitution, or you can say constitutionally guaranteed. When we talk about this, then there is the point that constitution cannot be amended by any level alone. Constitution amendment का मतलब होता है कि अगर constitution के provisions में या features में या basic structure में जो भी कोई अगर change modify करना होता है तो उसको कोई एक level of government अकेले नहीं कर सकती है, दोनों level of government का consent उसके लिए ज़रूरी होता है. Then there is a provision of independent judiciary. So it is the duty of the judiciary. Basically, judiciary is there to ensure that all the provisions of constitution are followed by both the levels of governments. Then we have that there is one feature in which we say that sources of revenue are clearly specified. हर एक सरकार को काम करने के लिए उसको कुछ sources होते हैं income के. तो जो रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं कि कौन सी सरकार का कौन सा टैक्स कलेक्शन करेगी या किस एरिया से करेगी, वो सारा क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड जनरली यू गेट अ क्वेश्चन ऑल्सो फॉर दिस, सो यू कैन नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म. क्या उद्देश्य क्या होता है फेडरलिज्म का या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने का. सो इट हैज़ अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, मतलब दो पर्पज इससे पूरे होते हैं. वन इज़ दैट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. मतलब कंट्री एक रहती है, कंट्री में फर्दर डिवीजन नहीं होता है कोई. एंड सेकेंड इज़ टू अकोमोडेट वेरियस रीजनल डाइवर्सिटीज़. क्या होता है कि जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, ऑब्वियसली किसी भी जो भी एक कंट्री की फॉर्मेशन होती है उसमें डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ होती हैं. हर रीजन में अलग डाइवर्सिटीज़ होती हैं. मतलब किसी की लैंग्वेज अलग हो सकती है, कहीं पे किसी एक धर्म के ज़्यादा लोग रह सकते हैं, किसी का कल्चर अलग हो सकता है. तो रीजनल डाइवर्सिटीज़ होती हैं. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये ऑब्जेक्टिव पूरा होता है कि रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके कंट्री की यूनिटी भी उससे बनी रहती है. सो दिस इज़ द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म. Now how the governments which are federal today, how they have been formed. So there are two ways to it. मतलब दो रास्ते हैं जिनको फॉलो करके फेडरेशन को फॉर्म किया जाता है.
One is coming together federation. In this what happens that like there are independent states और वो सब खुद डिसाइड करती हैं कि उनको एक बड़ी यूनिट बनानी है, एक लार्जर यूनिट बनानी है टू हैव अ कॉमन सिक्योरिटी एंड दे पुल इन देयर सॉवरेनिटी. इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वो उनकी मेंटेन रहती है. तो जिसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है. सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. सो इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन व्हाट हैपन्स दैट देयर इज अ लार्जर यूनिट, बड़ी कंट्री है या बिग यूनिट है, and then it decides to divide the power to between or with its constituent units. जिन भी यूनिट से वो मिलके बनी होती है तो उसके साथ वो अपनी पावर डिवाइड करती है. दिस इज कॉल्ड एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. सो जैसे कि हम बात करें इंडिया की, सो इंडिया इज वन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. Now we come to another important aspect, because now we talk about India as a federal country. So what makes India a federal country? सो वैसे तो क्या है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है एंड इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. बट अगर हम सारे फीचर्स जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किए उनकी बात करूँ तो वो सारे के सारे फीचर्स फेडरलिज्म के इंडियन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल हैं. तो वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. नाउ हेयर देयर इज़ अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उनकी थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है. वन इज़ द सेंट्रल और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के या नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, मतलब जो पूरी कंट्री के एज अ होल इम्पॉर्टेंट है. तो उनके ऊपर जो लॉ मेकिंग करते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. देन स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो स्टेट लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो उनमें जो हर स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी स्टेट के लिए लॉ मेकिंग करती है. तो जैसे कि उसमें पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारे के सारे. जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर हम पुलिस की बात करें तो हम हरियाणा पुलिस बोलते हैं, पंजाब पुलिस बोलते हैं. इट शोज दैट एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन पुलिस स्ट्रक्चर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. देन वी हैव कंकरेंट लिस्ट. सो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो, क्योंकि कंट्री तो एक ही है, होल नेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के भी मतलब कॉमन होते हैं वो सब्जेक्ट्स, मतलब दोनों लेवल पे दोनों सरकारें उनके ऊपर लॉ बना सकती हैं. लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इफ़ देयर इज अ क्लैश बिटवीन द टू लॉज, मतलब जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने, सो द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं. इसके अलावा रेजिड्यूरी पावर्स की भी यहाँ पे बात की गई है. तो रेजिड्यूरी पावर्स की मैं बात करूँ तो ये है कि जैसे पहले से ये डिसाइड हुआ था कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो ग्रेजुअली बाद में इंक्लूड हो और मतलब वो तीनों लिस्ट में से कहीं पे भी ना लिखे गए हों, तो उनकी जो पावर है लॉ मेकिंग की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखी गई है. सो दीज आर कॉल्ड एज द रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन वी हैव यूनियन टेरिटरीज. सो क्या हुआ था कि जब कंट्री फॉर्म होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रीजन्स इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जिस्ट करें या इस्टेब्लिश कर पाएँ. तो कुछ ऐसे रीजन्स थे या टेरिटरीज थी जो पूरी तरीके से जिनको स्टेटहुड नहीं बनाया दिया जा सकता था और ना ही उन्हें किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में मर्ज किया जा सकता था. तो उन टेरिटरीज़ को नाम दिया गया यूनियन टेरिटरीज़ का. जैसे कि अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो ये हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं. अब है बात कि जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया है, मतलब कैसे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. सी फेडरलिज्म के सक्सेस या उसकी स्ट्रेंथ के पीछे ये मेन चीज़ होती है कि जो जिस भी कंट्री में फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो कैसी है. मतलब अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कंट्री फॉर्म्ड है तो वहाँ पे फेडरलिज्म का सक्सेसफुल होने के और स्ट्रेंथन होने के बहुत चांसेस हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो बुक में 2 मैप भी दिए हुए हैं. तो अगर हम इंडिया की फॉर्मेशन की बात करें तो पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस वक्त इंडिया एक अलग ही तरीके से डिवाइडेड था. इट वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. तो जैसे कि मैं 1947 की अगर बात करूं तो उस टाइम इंडिया में जो पूरी कंट्री थी ब्रिटिश प्रोविंसेस और उसमें डिवाइडेड थी, जैसा कि मैंने बोला. तो क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड किया गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं
वो उनको ब्रिटिशर्स ने ये ऑप्शन दिया था कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे और अगर वो चाहें तो इंडिया या पाकिस्तान में भी मिल सकते थे। सो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारे लीडर्स थे, दे फॉलोड दे फॉलोड अ प्लान स्ट्रेटजी टू incorporate or they had a talk with the rulers of princely states and convince them to merge into Indian territory or Indian Union। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी रोल रहा। तो अब ये क्वेश्चन ये आ रहा था कि लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया फॉलो किया जाए स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए, कि स्टेट कैसे बनाई जाएंगी, मतलब पूरी की पूरी जो इंडिया उस वक्त था तो उसको कैसे रीजन्स में डिवाइड किया जाएगा, उसका कोई तो आधार होना चाहिए या बेसिस होना चाहिए। तो उस वक्त डिसाइड किया गया कि लैंग्वेज वुड बी द क्राइटेरिया टू इस्टेब्लिश स्टेट। सो दिस इज़ हाउ दैट at that time there were 14 states in India, and today the states, the number of states are almost it is doubled. Because in over a period of time new states were being carved out and they were being given independent statehood. Now let's talk about the language policy of India. So when India became independent, there was no common language which was being spoken by the people of all the entire country. तो कोई भी एक ऐसी कॉमन भाषा नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको ज़्यादा रीजन्स में बोला जाता था या समझा जाता था। तो इसलिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया कि दे डिड नॉट गिव एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज, बट हिंदी वॉज एक्सेप्टेड एज अ लैंग्वेज फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बट फॉर दैट ऑल्सो ऑल द स्टेट्स वर ऑल्सो बींग लेफ्ट इंडिपेंडेंट, कि हाँ वो अपनी स्टेट में अपनी भाषा से अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी, या उनकी भाषा को, रीजनल भाषा को यूज़ किया जा सकता था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम कहीं भी जाएं, अगर साउथ में जाएं या नॉर्थ की स्टेट्स में भी जाएं, तो जो साइन बोर्ड होते हैं वो भी उसी स्टेट की भाषा में ही लिखे हुए होते हैं। तो सारी स्टेट्स को ये अलाउड है। और इंडियन गवर्नमेंट ने, लीडर्स ने उस वक्त बहुत कॉशियस अप्रोच ही अपनाई थी कि हिंदी को वो ना थोपे लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे लोग हिंदी नहीं समझ पाते थे। तो बहुत ही कॉशियस अप्रोच फॉलो की थी इंडियन लीडर्स ने, एंड दे ऑल्सो अलाउड इंग्लिश टू कंटिन्यू एज द लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल यूज़। नाउ इन दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड सेंटर स्टेट रिलेशंस? नाउ द थिंग इज़ कि हमने बात की फेडरलिज्म में, कि फेडरलिज्म में पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। ठीक है, कि जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है उसको एक्चुअली पार्टीज कैसे फॉलो करती हैं। तो पहले क्या था कि जो हमारे फर्स्ट 3 डेकेड्स थे उस इंडिपेंडेंस के बाद, तो सिर्फ सेम पॉलिटिकल पार्टी थी जो सेंटर में भी सरकार बनाती थी और स्टेट में भी सरकार बनाती थी। तो कई बार ऐसे केसेस सामने आए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने डिसमिस कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेकिन फिर धीरे धीरे ये फिनोमिना चेंज होने लगा और ग्रेजुअली 1990 तक आते आते ये काफ़ी चेंज हो गया। 1990s में हम अगर बात करें तो there was a new culture emerged, and that was the growth of regional political parties and the era of coalition governments। तो अब क्या हुआ कि जो डिफरेंट रीजन्स थे या स्टेट्स थी, बेसिकली हमारी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे उनकी जो अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी, और मतलब उनकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो गई थी। तो जिसकी वजह से अब अगर सेंटर में भी जो सरकारें बनाई जाती हैं तो बहुत बार रीजनल पार्टीज़ की सपोर्ट से वो सरकारें बनाई जाती हैं। तो ये एक तरीके से सेंटर और स्टेट रिलेशंस को दिखाता है। जनरली क्या होता है कि अगर सेंटर में भी सेम पार्टी सरकार बनाए और स्टेट्स में भी सेम पार्टी सरकार बनाती है तो उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉमन आइडियोलॉजी तो उनका जो रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी ठीक रहते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इट हैज़ चेंज्ड। Now we come to the decentralization, process of decentralization in India. So what is the meaning of decentralization? So when the power is taken away from central government and state governments and it is being passed on to another level, that is called as the process of decentralization.
देखो फेडरलिज्म में वैसे यूजुअली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। बट जैसे अगर हमारे कंट्री की बात करें या बेल्जियम में भी हमने पढ़ा तो कई बार होता है कि रिक्वायरमेंट अगर होती है तो एक और लेवल उसमें ऐड किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, क्योंकि इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि जो मतलब लोकल लेवल होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं वो सिर्फ वहीं के लीडर्स और वहीं की पार्टीज समझ सकती हैं। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया गया इंडिया में। सो 1952 से फॉलो किया गया था एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लेटर ऑन इन बाय 1977 इट वाज केम टू बी नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो लेकिन क्या था कि बहुत सालों तक ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मतलब ये ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल हमारी कंट्री में ये इंस्टीट्यूशंस नहीं हुए, क्योंकि कुछ स्टेट्स थी जो यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस कराती थी, कुछ नहीं कराती थी, तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया था। लेकिन 1992 में कुछ स्टेप्स उठाए गए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई ताकि कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में, क्योंकि हमारे 2 लेवल आ जाते हैं, एक रूरल गवर्नमेंट आ जाती हैं और एक अर्बन गवर्नमेंट आ जाती हैं। तो इनमें फिर स्टेप्स उठाए गए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। सो इसमें कुछ स्टेप्स थे। इट वॉज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस, मतलब सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि इस लेवल पे इलेक्शंस ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, और कुछ सीट्स भी रिजर्व की गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए। इनफैक्ट 1/3 seats are now reserved for women in these local bodies, and there was a independent state election commission established which is responsible for conducting elections for these institutions. इस बार आई थिंक ये भी एक क्वेश्चन आया था कि which independent body conducts elections for local bodies. तो इस तरीके से ये भी बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कुछ रेवेन्यू को भी शेयर करेंगी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। Now you must know about पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देर आर मेनली 3 लेवल्स, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। छोटी क्लासेस में भी तुमने ये पढ़ा ही हुआ है वैसे तो। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि वहाँ पे एक और विलेज लेवल पे एक और बॉडी होती है, पॉलिटिकल बॉडी तो नहीं लेकिन एक बॉडी होती है जिसको ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा बेसिकली इज कम्पोज ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स। उस गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो मिलके ग्राम सभा बनाते हैं और उनका काम होता है ग्राम पंचायत के फंक्शनिंग पे सुपरविजन करना। ग्राम पंचायत में 5 मेंबर होते हैं जिनको पंच बोला जाता है और एक हेड होता है जिसको सरपंच बोला जाता है। हर गांव की एक अपनी ग्राम पंचायत होती है। फिर 10-12 गांव की जो पंचायत होती है उनको क्लब किया जाता है इकट्ठा, और एक ब्लॉक लेवल पे जो कमेटी बनाते हैं उसको पंचायत समिति बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ पंचायत समिति इसको मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी जो सारी की सारी पंचायत समिति होती हैं, दे आर ग्रुप टुगेदर एंड दिस इज कॉल्ड एज जिला परिषद। तो इसी तरीके से जिला परिषद जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, और इसी तरीके से हमारी अर्बन गवर्नमेंट होती हैं जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं और उनका जो हेड होता है वो मेयर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप you would now go through each point and note down the points. Thanks a lot for watching children, and stay tuned for more videos, and do subscribe my channel, like, share and comment, and also press the bell icon so that you are updated and keep getting notifications regarding the new videos. Thank you.